اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ غزوہ خندق کے دوران آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر کے بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی ریت اور گرد کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا، خدا کی قسم، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آئے گا، تب آپ علیہ السلام نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت اور شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراد دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوہاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کعب بن اسد نے کہا، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ ایک یہودی نے کہا، وہ اہل قریش میں سے نہیں، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا۔ اسی یہودی نے کہا، مگر ان کے ساتھ گیا نہیں، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ کعب نے کہا، پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں؟ یہودی نے کہا، میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو، ایک اور یہودی نے کہا، تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد ہمیں ختم کروا دے گا۔
तीसरे यहूदी ने, जो बूढ़ा था, कहा, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? हमें इसके आगे बंद बांधना है, इसे रोकना है। काब बिन असद ने पूछा, लेकिन कैसे? उस बूढ़े यहूदी ने कहा, कत्ल, मोहम्मद का कत्ल। काब बिन असद ने कहा, ऐसी जुर्रत कौन करेगा? तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु कैनका और बनु नुज़ैर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया है और उनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं, वो मत भूलो। उस बूढ़े यहूदी ने कहा, खुदाए यहूदा की कसम, मेरी अकल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद को कत्ल करने नहीं जाएगा। काब ने पूछा, फिर वो कौन होगा? बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया, वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। लैस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु कुरैजा का सरदार हूँ, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही न हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? बूढ़े यहूदी ने कहा, सुनो काब। फिर यहूदी हसीना यूहावा की तरफ देखा, बोला, मैं ये बात लैस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा न होगा? यूहावा ने कहा, इस बात में उस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। काब बिन असद ने कहा, हम उस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? हम तुम पर एतबार करते हैं। बूढ़े यहूदी ने कहा, वो यही है, हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गतफान और उनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त ही खाई है। हमने उन्हें मदीना पर हमले के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदाए यहूदा की कसम, काब, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमला न करके बहुत बुरा किया। काब बिन असद ने कहा, मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। बूढ़े यहूदी ने कहा, वजह सही थी या गलत, वक्त हाथ से निकल गया है। अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। उसने यूहावा से कहा, लैस बिन मोशान को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर रखो। यूहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो उसके साथ लैस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसके चेहरे का रंग सुर्ख सफेद था। उसने ऊंट के रंग की कबा पहनी हुई थी। उसके हाथ में लंबा असा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लैस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्के और मदीने के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। उसके मुतालिक बहुत सी रिवायात मशहूर थी, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता है। यहूदी उसे अपना पीरो मुर्शिद समझते थे। वो जहाँ दीदा और आलिम फाजिल शख्स था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब उसकी ताजीम को उठे और जब वो बैठ गया तो सब बैठे। काब बिन असद ने कहा, खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं? खुदाए यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं कर सकता। यूहावा शायद आपको ले आई है। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं पैगंबर नहीं हूँ काब बिन असद। मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताजीम व एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई न बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर लिया जो तुम्हें करना चाहिए था। काब बिन असद ने कहा, मोअज़्ज़िज़ मोशान, हमने अभी उस इंतहाई इक़दाम की नहीं सोची थी। अगर हम मोहम्मद के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते भी तो यूहावा को इस्तेमाल न करते। हम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लैस बिन मोशान ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम फरामोश कर बैठे हो कि सारी दुनिया पर खुदाए यहूदा की हाकिमियत होगी? दाऊद के सितारे की कसम, बनी नौ इंसान पर बनी इसराइल की हाकिमियत कायम करने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें इंसान की फितरी कमजोरियों को अपने हाथ में लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि मर्द क्या चाहता है? आला नस्ल के 20 घोड़े और 20 गुलाम यूहावा के साथ खड़े कर दो। किसी से भी कहो कि उसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और यूहावा को ले जाएगा।
तमाम महफिल पर खामोशी तारी रही। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की इस्मत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। इस्मत का शर्म हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बदी और नेकी के मानी बदल जाएंगे। मोहम्मद बुराई और बदी को खत्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, उन्हें जन्नत की हूरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, उनमें और ज्यादा हैवानियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये देखो कि यहूदियत की हाकमियत के लिए क्या अच्छा है, खा वो बुरा ही हो। फिर उसने यूहावा की तरफ देखा और कहा, इन्हें बताओ यूहावा, इन्हें समझाओ। यूहावा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। वो बोली, ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। यूहावा ने शर्मो हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, इक्रिमा और सफवान को अपने हुस्न जवानी के तिलिस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। उसने उन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन उनमें कोई भी उसके हाथ न आया। उसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी। यूहावा ने कहा, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है इक्रिमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। यूहावा मायूस न हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से उसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि उसके दिमाग में यही एक सौदा समाया था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज यूहावा मक्के से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। उसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनोमंद आदमी भी पांव जमा कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और उन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को उस दीवार ने निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठ कर कश्ती में पड़ती हैं और कश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुककर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर के बाद वहाँ रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और उसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। यूहावा ने सुनाया, बोली, आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी। घोड़े रेत से लदे हुए छक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड्ढे आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए, जहाँ दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि उसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी न गिरी। उसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो उस तरफ बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई और मैं कलाबाजियां खाती गई। संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों और उसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे ऊद आता ताकि मैं तन्हा न रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। यूहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। यूहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। यूहावा उस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई।
ये नशीबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टुंड-मुंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी, ये इंसानों की भी नहीं लगती थी, वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी, भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा न होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्के के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशत जदगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई थी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि यूहावा रुककर पीछे हट आई। अब उसे शक न रहा, ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। यूहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। यूहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जरूरत न की। वो रुक गई। उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। यूहावा की बेख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। यूं ही वो उस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। यूहावा घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओ, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती। यूहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपाकर कहा, मेरे साथ 4 आदमी हैं। उनके पास घोड़े हैं, तलवारें और बर्छियां भी। उस आदमी ने कहा, कहाँ हैं वो? तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई हो? उन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। यूहावा वहां से न हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वो उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन यूहावा की जबान बंद हो गई। उस आदमी ने झपटा मारकर यूहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और यूहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? यूहावा ने रोती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं अकेली हूँ, मुझ पर रहम करो। यूहावा ने उसे बता दिया कि वो यहाँ किस तरह पहुंची है। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ आओ, और यूहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। यूहावा ने कहा, जरा रुको, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीले कुरैश के आदमी हो शायद। उस आदमी ने कहा, मैं अकेला हूँ और मेरा कबीला कुरैश ही है, मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। यूहावा ने कहा, मैंने तुम्हें मक्के में अक्सर देखा है, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जरीद बिन मुसय्यब हूँ, मेरे साथ आओ। यूहावा ने कहा, फिर तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें यूहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसय्यब का था, जो बाहर ही कहीं बैठा हुआ था। जरीद यूहावा को गार में ले गया। जरीद दराज कद, गठे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान था। उसने गार में ले जाकर यूहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थी। जरीद ने कहा, खामोशी से बैठी रहो, आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। इस्लामिक शो स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।